Okay, students, please start joining the class, and I am recording this session. It will be kind of a way to have a proof that you have joined. And these are the students who are initially joined the session. I will share this recorded lecture with you so you can go through it again. And please kindly do a favor. Anyone who is not in the group, kindly make them join the group, and also make sure that you share the Zoom link with them, with someone who is not in the group. Okay, and uh, this will I will keep on this panel to show to see who is available and who is not. So please be with me till end. Secondly, I will share the slides with you. We will try to like complete the lecture today. If it completes in 1 hour or 1.5 hour, then I will let you finish it. Like हम क्लास खत्म कर देंगे अगर घंटे 1.5 घंटे में हमारा स्लाइड्स कंप्लीट हो गई, लेक्चर कंप्लीट हो गया तो आप जा सकोगे, ठीक है? So give me a second. I will share the screen with you and I will share the lectures with you. And hold on a second, please. Okay, this is a lecture. I'm sharing it with you. Uh, this is today's lecture. We will go through it. There are around 50 slides. Don't be scared of it. I will be reading it and you take notes because it's all theoretical. And so second thing is I will go mute for a few minutes. I'll let other students join too. I will be keep opening this, noticing that who is available and who is not. So for a few minutes, I'm going off mute and wait for other students to join. मुझे भी ऑनलाइन क्लास का लिंक सेंड करना, मैं भी ज्वाइन। अच्छा, उस क्लास में क्लास डाला वगैरह। सर शफकत का लिंक तो तुझे पता है कहाँ मिलेगा? उसके लिए तुझे वीपीएन लगाना पड़ेगा लास्ट। अरे भाईजान, इस बार उजाला से भी कोर्स नहीं मिले, यूनिवर्सिटी वालों ने उसको कोर्स किया है। सर शफकत का मिला है बस। अगर शफकत से अपना प्राइवेट में लिंक लेना चाहता है तो प्राइवेट में मैसेज कर दे। सर शफकत तुझे प्राइवेट में बता देंगे। तो हो गया।
Okay, G, we are back, and students whose name are not your. See, this is a student with Infix Smart 6. Now, I cannot tell who the student is. So, kindly आप ना या तो फिर chat में लिख दें कि आप कौन हो. Infix Smart 6X हैं, उनका नहीं पता चल रहा, आप अपना नाम और आईडी लिख दो. ठीक है. और प्लीज और अपने माइक्स बंद कर दें. दूसरा कौन है? और जो स्टूडेंट आपको पता होगा ना कि आपने किस आईडी से लॉगिन किया, प्लीज अपना, ताकि तभी अटेंडेंस मार्क हो सके, कि वरना मैं कैसे करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा आप कौन हो. तो प्लीज अपनी जो ये इसका नाम है ना, पिज्जा मुगल, अपना आईडी भी लिखते हैं काइंडली मैसेजेस में ना. ओके. So, fine. So today these are the topics that we'll be covering, like cleanliness, disposable. Slides are many. I will read it. You just take notes of it, and then if it's done in 1 hour or 1.5 hours, then we can end the session. Let's come directly to the lecture. Okay, cleanliness. We all know it has something to do which is clean. So we were talking about international relationship, industrial. We are learning about labor laws. So if the labor is working in a factory, what are the laws related to it? So clean सफाई वैसे कहते हैं निस्फ ईमान है. I will read the slide. Every factory shall be kept clean and free from effluvium arising from any drain. यानी कि जैसे गटर कोई है, गटर खुला हुआ है, तो वहां से अगर कोई बदबू आ रही है या जर्म्स हैं, तो वो आपको साफ रखना पड़ेगा. ट्रेवियो और अदर नॉनसेंस, ठीक है, अगर वो स्मेल आ रही है या गटर साफ नहीं है, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा. In particular, the accumulation of dirt and refuse shall be removed daily by sweeping or any other effectiveness method from the floors and benches of workrooms and from staircases and disposed of in a suitable manner. कि कहीं पे भी मट्टी नहीं होनी चाहिए कि सीढ़ियों पे है या कुर्सी पे मट्टी है, तो उसको आप सही से साफ करें. The floor of every worker room shall be cleaned at least once in every week by washing. हफ्ते में एक दफा उसको साफ करें यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स, यानी कि दवाई जैसे कि जर्म्स मिल जाए. वन नेसेसरी और बाय सम अदर इफेक्टिव मेथड. क्या आप हफ्ते में एक दफा पूरे फैक्ट्री की सफाई करेंगे फिनाइल से, इस तरह से, ताकि जर्म्स बढ़. Where the floor is liable to become wet in the course of any manufacturing process to such extent as is capable of being drained, effective means of drainage shall be provided and maintained. अगर कहीं ऐसा काम हो रहा है जहाँ जमीन गीली हो सकती है, तो वहां उसको साफ करें, क्योंकि कोई भी स्लिप हो सकता है, फिसल सकता है. All inside walls and partitions, all ceilings are tops of rooms and walls, sides and tops and passages and staircase shall. तो अगर कोई छत है, दीवारें हैं, कहीं पे भी कोई रास्ता आने जाने का है, वहाँ पे क्या होना चाहिए? Where they are painted or varnished, be repainted or revanished for at least once in every 5 years. कि अगर उनको हर 5 साल में पाँच साल में एक दफा आप उसको दोबारा पेंट करेंगे, ठीक है. Where they are painted or varnished and have smooth impervious surfaces be cleaned at least once in every 14 months by such methods as may be prescribed. तो अगर पेंट कहीं से उतर नहीं रहा हो, तो हर 14 महीने के बाद, यानी कि 1 साल 2 महीने के बाद आप उसको फिर से साफ करें. In any other case, kept whitewashed or color washed, and the whitewashed or the color washing shall be carried out at least once in every 14 months. और अगर पेंट की जरूरत है, तो हर 14 महीने के बाद उसको पेंट करेंगे. The dates on which the process required by clauses are carried shall be entered in the prescribed register. फिर आपने नोट भी कर लेनी है वो dates जिस दिन आपने पेंट वगैरह किया है. Again, cleanliness कहता है, if in view of the nature of the operations carried out in a factory, it is not possible for the occupier to comply with all or any of the provision. तो जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री जो ऊपर हमने बातें की थी वो सारी एक साथ करे, एक एट अ टाइम भी कर सकते हैं. Provisional government may, by any order, exempt such factory or class or description of factories from any of the provisions of that subsection and specify alternative methods of keeping the factory in a clean state. कि अगर आप बार बार पेंट नहीं कर सकते हो या बार बार मट्टी नहीं साफ कर सकते, बार बार गटर नहीं साफ कर सकते, तो दूसरे तरीके पे आप इस्तेमाल कर सकते हो. डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड एपिलेट्स, यानी कि कोई कचरा है तो उसको आप कहाँ फेंको, ठीक है. Effective arrangement shall be made in every factory for the disposal of waste and effluents due to the manufacturing process carried on there. जैसे कहीं ऐसी आप जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे कचरा बहुत ज्यादा हो जाता है या गंदी गंदी स्मेल आ जाती है, जैसे मीट आप डील कर रहे हो, तो उनकी जो अगर गोश्त है, ठीक है, मुर्गी वगैरह है, उन पे जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है, जब नहीं खाते हैं, तो ऑब्वियसली उनको कहाँ फेंकना है, सही तरीके से फेंकना है. The provisional government may make rules prescribing the arrangements to be made under subsection 1 or requiring that the arrangement made in accordance with that subsection shall be subject to the provisional or sub
सॉरी वो इंटरनेट चला गया था। देन यहाँ पे किसी और ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आई थिंक जेन शेख से हट सकती है। एनीवेज देन सब आपने होस्ट हो गए हो क्या? उसको आप फिर वो कर लो। अगर आप होस्ट हो गए हैं तो मुझे वो दे दें, पावर दे दें। देन आई थिंक आप होस्ट हो गए हो। और मैं इसको मिनिमाइज भी नहीं कर पा रही। ओके ओके फाइन, फेयर इनफ। ये स्टूडेंट सेंड अवेलेबल है। सो वेंटिलेशन हमें पता होता है कि क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, खिड़कियां जो है वो खुली भी होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, टेम्परेचर भी ज्यादा टेम्परेचर ना हो, ज्यादा गर्मी भी ना हो रही हो, ज्यादा ठंड भी ना हो रही हो। तो effective and suitable provision of effective and suitable provision shall be made in every factory for securing and maintaining in every workroom। हर कमरे में ये ख्याल रखना पड़ेगा। Educate ventilation by the circulation of fresh air, कि ताज़ी हवा आनी चाहिए। ठीक है, आपकी वेंटिलेशन हो क्रॉस वेंटिलेशन की, दो खिड़कियां खुली हुई, एटलीस्ट एक साइड से अगर हवा आ रही है तो दूसरी साइड से जा रही है। Such temperatures as will secure to workers therein reasonable conditions of comfort and prevent injury to health and in particular, तो उनकी कहीं सेहत ना खराब हो जाए या इंजरी ना हो। The walls and roofs shall be of such material and so designed that such temperature shall not be exceeded but kept as low as particular। यानी कि आप दीवारें इस तरह बनाएं कि वो ठंडी रहें। ठीक है। और where the nature of the work carried on in the factory involves or is likely to involve the production of excessively high temperatures, such as adequate measures are as particular practicable shall be taken to protect the workers therefrom by separating the process which produces such temperature from the workroom by insulating the work parts or by the other effective means। कि अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जैसे कमरा गर्म हो सकता है, जैसे अगर बेकरी है तो आप बाकी जो ऑफिस है वो उस कमरे से थोड़ा अलग रखें ताकि दूसरों को गर्माइश की प्रॉब्लम ना हो। The provisional government may prescribe a standard of adequate ventilation and reasonable temperature for any factory or class or description of factories for parts। तो हर फैक्ट्री में उसकी अगर किस किस्म की वो फैक्ट्री है वहाँ वेंटिलेशन जरूरी है, इवन यूनिवर्सिटी है क्लास है वेंटिलेशन जरूरी है। That a thermometer shall be provided and maintained in such place and position as may be specified। तो आप थर्मोमीटर या थर्मोस्टेट्स लगा के पता चले कि कमरे में कितनी गर्मी हो रही है। If If it appears to the provisional government that in any factory or class or description of factories excessively high temperature can be reduced by such methods, that's whitewashing। तो अगर कमरा गर्म है, अगर आप उसको दीवारों को व्हाइट पेंट करेंगे तो हो सकता है कि ठंडा हो जाए, स्प्रे कर दें कुछ ऐसी चीज, इंसुलेशन लगा दें कि जिससे कमरा ठंडा रहे। ऐसा कमरा आप रखें कि जो उससे कमरा ठंडा रहे। ठीक है, तो आप ऐसी इंसुलेशन उसमें कर दें। And screening outside walls or roofs or windows or by raising the level of the roof। अच्छा, रूफ बाय रेजिंग द लेवल्स ऑफ द रूफ के, या घर की जो छतें, पहले जमाने में जो घर होते थे ना उनकी छतें बहुत ऊपर होती थी तो घर जो है ना ठंडे ठंडे रहते थे। आपको अगर आप अभी भी जो पाकिस्तान में कराची में पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है अगर आप चले जाएं उनकी छतें बहुत ऊपर होती है, बहुत ठंडे ठंडे होते हैं। प्लीज अपने माइक जो है ना वो म्यूट पे कर लें ताकि ये डिस्टर्बेंस ना हो। बाकी अपना प्लीज माइक म्यूट कर लें। ठीक है, थैंक यू। ओके, fine enough. And okay, so if it appears to the provisional government that any factory or class or description of factory is acceptably high temperature can be reduced by such methods of whitewashing, कि आप उसको white paint कर दें या वहाँ पे कोई spray कर दें,
या आप उसमें कोई इंसुलेटिंग लगा दें, ऐसी कोई स्क्रीन, जैसे खिड़कियों पे आपने ब्लैक स्क्रीन लगा दी कि रोशनी आ रही है मगर ज़्यादा रोशनी ना हो। वॉल्स के बाहर विंडोज और लेवल ऑफ रूफ आप छतें ऊपर कर दें। सो बाय इंसुलेटिंग द रूफ either by any air space and double roof or by the use of insulating of roof materials, कि छतों के ऊपर कोई ऐसा मटेरियल लगा दें इंसुलेट करने के लिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो। Okay, either by air space and double roof or by the use of insulation roof material or by other methods, it may be prescribed such of these or other methods to be adopted in the factory। तो जैसे बताया गया है कमरों को ठंडा रखने के लिए वैसे आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, फिर ये कहता है के जी बंदा किधर करें। In every factory, dust and fumes, dust means मट्टी, fumes कोई फ्यूम्स मतलब जैसे कोई जैसे कोई आप चीज बना रहे हो तो उसमें से धुआं उठ रहा है, या केमिकल्स है, केमिकल्स एक फ्यूम्स आती है ना, एक स्मेल आती है। In every factory in which by reason of the manufacturing process carried on there is a giving of any dust or fumes or other impurity of such a nature and to such an extent it is likely to be injurious or offensive to the workers employed there। यानी कि अगर वो मट्टी है या वो बदबू ऐसी आ रही है कि जो सेहत खराब कर सकती है, या कुछ ऐसे शख्स हैं जिनको जिनको बदबू बर्दाश्त नहीं होती, जैसे मैं हूँ, मुझसे थोड़ा सा ये मसला है, तो मैं मुझसे बदबू बर्दाश्त नहीं होती है, इट माई पीट पीस बट पीट्स। तो उससे क्या होता है कि आप वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा ध्यान रखें कि किसी तरह जो है ना, किसी तरह जो ये आपकी जो स्मेल है ना आती है। ठीक है, स्मेल ना आ रही हो, स्क्रीन शेयर हो रही है, आप सब प्लीज मुझे कॉल नहीं करें, जो भी कर रहे हैं आप यहाँ पे मैसेजेस छोड़ दें, मैं इस तरह डिस्टर्ब हो रही हूँ, पास नहीं है। अच्छा, इन एनी फैक्ट्री, सेकंड मैसेज छोड़ देना, क्या कह रहा है। अच्छा, मैं एक सेकंड एक स्टूडेंट के साथ लिंक शेयर कर दूं। प्लीज आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ लिंक शेयर कर लें, मैं एक एक स्टूडेंट को नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अपना Okay. So in every factory in which by reason of the manufacturing process carried on there is given any dust or fumes, कि अगर किसी से नहीं वो बदबू बर्दाश्त होती, मट्टी नहीं होती, किसी को मट्टी से एलर्जी भी होती है, अस्थमा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, effective measures shall be taken to prevent its accumulation in any workroom and its inhalation by workers, ताकि वो गंदी सी स्मेल करें, उनको मट्टी उनके सांस में ना जाए। If any exhaust appliance is necessary for this, तो आप उसके लिए एक एग्जॉस्ट फैन लगा दें। It shall be applied as near as possible to the point of origin of the dust, तो वहां पे लगाएं जहां पे मट्टी हुई हो। जैसे हमारे एग्जॉस्ट फैंस होते हैं वॉशरूम में लगे हुए होते हैं, स्पेशली जो हमारा जो वॉशरूम है उसी कमोड के ऊपर ही लगा हुआ होता है। इसी तरह किचन में जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो आपको जो चूल्हा होता है डायरेक्टली उसी के ऊपर लगा होता है। Fume or other impurity in such point shall be enclosed as far as possible. In any factory, no stationary internal combustion engine shall be operated। कि फैक्ट्री के अंदर भी आपने वो कोई ऐसी मशीन नहीं लगानी जिसको आग से चलाना पड़ रहा हो। Unless the exhaust is conducted into open air and exhaust pipes are insulated to prevent scalding या radiant heat। तो वो जो भी चीजें अगर उनके जो पाइप्स हैं वो बाहर की तरफ निकलते हो, जैसे हम एसी लगाते हैं तो एसी का जो
यूनिट 1 होता है वो तो कमरे के अंदर लगा होता है, जो यूनिट 2 होता है वो कमरे के बाहर लगा होता है, बाहर साइड पे होता है, ताकि जो भी गर्मी वगैरह फ्यूम्स है वो बाहर निकले पाइप के जरिए से। And no internal combustion engine shall be operated in any room unless effective measures have been taken to prevent such accumulation of fumes thereof as are likely to be injurious to the workers employed in the workroom. तो आपने डायरेक्टली कोई भी उनको हीट ना लग रही हो, फ्यूम्स ना लग रही हो वर्कर्स, क्योंकि उनकी सेहत को खतरा हो। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, फ्यूम्स भी हो गया। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, यहाँ पे जब चाइना में पढ़ी थी तो वहाँ पे हर टीचर के रूम में एक छोटी सी मशीन रखी हुई थी जो कि ह्यूमिडिटी क्रिएट करती थी। ठीक है, हाँ, जानबूझ के ह्यूमिडिटी क्रिएट की जाती थी। तो आपको अगर आपका जिस कमरे में है वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है तो आपको ह्यूमिडिटी थोड़ी सी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि थोड़ा सा कमरा ठंडा रहे। तो आप आर्टिफिशियली भी कर सकते हो, कैसे? Provisional government may, in respect of all the factories in which humidity of the air is artificially increased, make rules prescribing standards of humidification कि कितनी ह्यूमिडिटी अपने रखनी है, बहुत ज्यादा भी नहीं रखनी अगर किसी को ठंड लगती है। Regulating the methods used for artificially increasing the humidity of the air, कि आपने कैसे उसमें ह्यूमिडिटी इंक्रीज करनी है ताकि शहर ठंडा रहे। जैसे देखे नहीं, 3 दिनों से गर्मी थी तो बारिश हुई तो हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो अब शहर जो है वो हवा थोड़ी ठंडी ठंडी हो गई। Directing prescribed tests for determining the humidity of the air to be correctly carried out and recorded. तो आपने टेस्ट करना है कि हवा में ज्यादा ह्यूमिडिटी भी ना हो और कम भी ना हो। Prescribed methods to be adopted for securing adequate ventilation and cooling of the air in the workrooms. तो कमरे के अंदर ना सही वाली वेंटिलेशन होनी चाहिए और सही वाली कूलिंग होनी चाहिए। In any factory in which the humidity of the air is artificially increased, the water used for the purpose shall be taken from a public supply or other source of drinking water and or shall be effectively purified before it is to be used. तो ह्यूमिडिटी के लिए जाहिर सी बात है, ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में पानी मौजूद होना या नमी। तो उसके लिए पानी चाहिए होगा। अगर आपका हवा गर्म है और आप उसको ठंडा करना चाह रहे हो तो उसमें आपको पानी की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे अभी बारिश हुई है तो पानी हवा में बढ़ गया है, ठंडा हो गया है, तो पानी आपको पब्लिक सप्लाई से लेना है, ये नहीं कि किसी के घरों से आप चोरी कर रहे हो। और वो भी पानी साफ होना चाहिए, उसमें बैक्टीरियाज ना हो, वायरसेस ना हो। In any factory in which the humidity of the air is artificially increased, the water used for the purpose shall be taken off for a public supply. अच्छा, ये हो गया। If it appears to an inspector that the water used in factory for increasing humidity, which is required to be effectively buried under subsection, it is not effectively verified, he may serve on the manager of the factory or an order in writing specifying the measures which in this opinion should be adopted and requiring them to be carried out before a specified time. तो अगर इंस्पेक्टर आता है, देखता है कि जो जैसे चीजें चाहिए थी अगर वैसे नहीं है तो वो बता भी सकता है कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और कोई अगर मैसेज है तो देख लूँ। नहीं है, एक सेकेंड, कॉल्स आ रही है मुझे, देखूँ कौन है। मैंने जो जूम की लिंक है ना वो पिन कर दी है। ठीक है, तो अगर किसी के पास लिंक नहीं है तो वो यहाँ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहे तो कर दे, ग्रुप में मैंने उसको पिन कर दिया है। ओके, मैं कह रहा इन एनी फैक्ट्री, in any factory in which the humidity of the air is artificially increased, the water, ये हमने कर दिया था कि इंस्पेक्टर आएगा वो सारी चीजें देखेगा। फेयर इनफ।
फिर ओवर क्राउडिंग, ज्यादा लोग एक जगह पे नहीं होने चाहिए, ज्यादा रश नहीं होनी चाहिए उनके लिए स्पेसिफिकली। देखिए जो आप नेट इश्यूज वगैरह बता रहे हैं ना, ये मेरा हेडेक नहीं है, आप वाहिद नहीं हो जो इनको इश्यूज आ रहे हैं, सबको आते हैं। ठीक है, तो प्लीज अवॉइड दिस discussions in the group. Okay, no workroom in any factory shall be overcrowded to an extent injurious to the health of the workers employed there. ज्यादा लोग नहीं बिठाए हुए हैं कि ये ना हो कि साथ वाला काम कर रहा तो दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है, या उसकी वजह से कोई, जैसे मैं अगर कोई आग वाला काम कर रही हूँ, दूसरे को वो काम नहीं है और उस वो उससे जो है वो थोड़ा हर्ट हो रहा होगा, तो थोड़ा फासले के साथ ऑफिसेज बनाए। Without prejudice to the generality of the provision of subsection, there shall be provided for every worker employed in a workroom at least 350 cubic feet of space in the case of factory in existence on the date of the commencement of the labor law. तो law ये कहता है कि इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए 350 क्यूब फीट। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकता है कि फैक्ट्री की स्पेस कितनी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके एमसीक्यूज आते हैं क्विजेस में या आपके मिड टर्म्स में आते हैं, मिड टर्म में ही आएगा, तो ये बन सकती है एक एमसीक्यू की जगह कितनी बड़ी होनी चाहिए फैक्ट्री की। At least 500 cubic feet of space in case of a factory built after the commencement of the labor law. The labor law 1972 में बना था, तब उन्होंने कहा था कि 50 क्यूबिक होनी चाहिए। फिर जब उसके बाद जो भी जगह बननी थी उनको कहा था कि एटलीस्ट 500 क्यूबिक होनी चाहिए, पहले थी 350 क्यूबिक। लॉ के बाद बड़ी, उससे उन्होंने बढ़ा दी। एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन no account shall be taken of a space which is more than 14 feet above the level of the floor or of the room. तो जो जगह है वो कितनी, इन विच मोर देन 14 फीट अबव द लेवल ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम। सबसेक्शन नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ अ स्पेस। अच्छा, स्पेस जो है ना, अगर जमीन से इतनी ऊपर है उसके बाद ही काउंट होगी। 14 फीट अबव द लेवल ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम, इफ पहले 14 फीट के बाद आपकी जो है वो हाइट काउंट होती है, और या मतलब 14 फीट तक एटलीस्ट आपकी जो है वो फ्लोर से लेकर छत की हाइट होनी चाहिए। If the chief inspector by order in writing so requires, that shall be posted in each workroom of a factory a notice specifying the maximum number of workers who may in compliance with the provision of this subsection be employed in the room. तो फैक्ट्री जो है वो जो सुपरवाइजर है उस कमरे में होना चाहिए। अच्छा, ये 10 मिनट में आपकी मीटिंग एंड होगी, मगर आपने जो है मैं दोबारा ग्रुप, वही जो लिंक आपके पास शेयर हुआ हुआ है उससे भी आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी मीटिंग दोबारा ऑन हो जाएगी। तो इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा और ये ना सोचिएगा कि क्लास एंड हो गया। मैं बार बार यहाँ स्क्रॉल खोल के देखती रहूंगी कि कौन अटेंटिव है कौन नहीं। मुझे वो बंदा मिलेगा, नजर आएगा, उसके अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, जो नहीं होगा वो नहीं, तो उसके मार्क नहीं होंगे। 10 मिनट्स में एंड होंगी, डोंट वरी। दोबारा उसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। फिर आगे कहता है लाइटिंग की रोशनी होनी चाहिए कमरे में। मैसेज क्या है, किसने इस क्लास में कोई सीआर बना है? क्लास में आई थिंक सीनियरिटी का सीआर है, मे बी। लाइटिंग, ठीक है, रोशनी। In every part of a factory where workers are working or passing, there shall be provided and maintained sufficient and suitable lighting, natural or artificial or both. के कॉरिडोर है वहाँ पे रोशनी होनी चाहिए, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ रोशनी होनी चाहिए ताकि प्रॉपरली नजर आ जाए, कोई जमीन पे चीज ना गिरी पड़ी हो जो आपको हर्ट करे। तो आप या खिड़कियां बड़ी बड़ी रखें या बल्ब्स वगैरह लगाएं। Emergency lighting of special points in workroom and messages to function automatically in case of a failure of the ordinary electric system. तो बैकअप सिस्टम होना चाहिए, बिजली चली जाती है तो आपके पास जनरेटर्स वगैरह होने चाहिए जिससे आप आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सको। In every factory of all glazed windows and skylight used for the lighting of the workroom shall be kept clean on both the other and inner surface and free from obstructions as far as possible under the rules framed under subsection. कि खिड़कियां वगैरह साफ रखें, धुंधली ना हो, मट्टी ना हो, ये ना हो कि रोशनी क्लियरली नहीं आ रही। In every factory, effective provision shall also, so far as it is practicable, be made for the prevention of glare either directly. तो खिड़कियों से ना डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा आप उसको किसी कागज वगैरह से कवर कर दें ताकि डायरेक्ट ग्लेयर से ना इंसान की नजर कम हो सकती है। From any source of light or any reflection from a smooth or polished surface, and the formation of shadow to such an extent as to cause eye strain or risk of accident to any worker.
इतनी डायरेक्ट सनलाइट भी ना आ रही हो कि उसकी आंखें कमजोर हो जाएं या कहीं से रिफ्लेक्शन आ रही हो, ठीक है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड तो वो बता सकता है कि कितनी सफिशिएंट लाइटिंग होनी चाहिए और किस किस्म का काम हो रहा है उस हिसाब से। फिर ड्रिंकिंग वाटर बहुत जरूरी है, पानी पीना चाहिए, बेसिक नेसेसिटी है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी अब आया है, पहले नहीं हुआ करता था। उसके लिए है इन एवरी फैक्ट्री effective arrangement shall be made to provide and maintain at suitable points conveniently suitable for all workers employed therein a sufficient supply of wholesome drinking water. Sorry, I'm also drinking water. वही कह रहा है कि फैक्ट्री के अंदर पीने का पानी मुनासिब मिकदार में आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि लेबरर्स जो है ना वो उनको, अगर वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, बॉडी में खत्म हो जाते हैं पानी, तो वो बीमार भी हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। Define further on, all such points shall be legibly marked drinking water, लिखा हुआ होना चाहिए कि पीने का पानी है या किसी और मकसद के लिए। In a language understood by all the majority of the workers, and note point shall be situated within 20 feet of any washing place. पानी जो है वो लिखा होना चाहिए, और अगर उनकी ज़बान उर्दू है या जो भी है वो सिंधी है, जहाँ पे ज़्यादा लोग में मेजोरिटी में उसमें हो, और वो वॉशरूम से दूर होना चाहिए। यूरिनल एंड लेट्रिन से वो तकरीबन 20 फीट दूर रखा हुआ होना चाहिए। तो हमारे यहाँ यूजली ऑफिस में मैंने ये देखा, किचन के साथ साथ ही वॉशरूम होता है। तो मुझे तो भाई कोफ्त होती है, घिन आती है, ऐसे कैसे हो सकता है। In every factory wherein more than 250 workers are ordinarily employed, provision shall be made for cooling the drinking water during the hot weather by effective means, and for distribution thereof an arrangement shall be made for। तो गर्मियों में पानी को ठंडा रखना चाहिए और सर्दियों में पानी को गर्म। ऑल डेली रिन्यूएबल वाटर इफ नॉट लेड ऑन, ठीक है, अगर पानी जो है वो डेली डेली आप उसको चेंज करें। A sufficient number of cups and other drinking vessels unless the water is being delivered in an upward jet, कि अगर वो आपने कप रखे हैं तो वो मुनासिब होने चाहिए। मगर मसला हमारे साथ ये है कि लोग कप चोरी करके लेके चले जाते हैं, तो जंजीरों से भी अगर कप बांधा हुआ होता है तो भी लोग चोरी कर देते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं या तो फिर जैसे वो नलके से आप हाथ मुंह लगा के पानी पी लो, या हाथ में चुल्लू में पानी लेके पी लो। अगर ये सिस्टम नहीं है तो पर आपको ग्लासेस वगैरह रखनी। फिर कहता है इन लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स, यानी कि वॉशरूम्स होने चाहिए हर फैक्ट्री में। सफिशिएंट लेट्रिन्स एंड urinals of prescribed type shall be provided conveniently situated and accessible to workers at all times while they are in the factory. वॉशरूम्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, और फीमेल्स और मेल्स दोनों के हिसाब से उस किस्म के वॉशरूम्स होने चाहिए। Enclosed of latrines and urinals shall be provided separately to male and female, दोनों के लिए अलग अलग होने चाहिए। Such urinals and latrines and urinals be adequately lighted, वहाँ पे रोशनी होनी चाहिए, वेंटिलेटेड होनी चाहिए, एग्जॉस्ट होना चाहिए, स्मेल नहीं होनी चाहिए। और वेदर तो वो चीफ इंस्पेक्टर इसको कहता है कि जी इसका आपने ख्याल रखना है। कम्युनिकेट विद एनी वर्करूम एक्सेप्ट थ्रू एन इन्वेंटरी ऑपरेटिंग स्पेस और वेंटिलेशन स्पेस। तो ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही खुली आपने कोई खिड़की वहां पे वॉशरूम में लगा दी, तो क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी का भी इशू होता है, तो आपने प्रॉपर्ली इसको वेंटिलेट करना है। In such detergents, units shall be maintained in a clean and sanitary condition at all times with suitable detergents of this effect. तो डेली उनको साफ करें सर्फ के साथ, फिनाइल के साथ। Floors and internal walls of the urinals and the sanitary block shall up to a height of 3 feet be finished to provide a smooth polished provision surface। तो 3 फुट तक उसका जो है लेट्रिन का वो होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, मतलब कमरा इतना बड़ा होना चाहिए, और वो जो अलग अलग क्यूबिकल्स हैं। वॉशिंग फैसिलिटी शाल बी प्रोवाइडेड नियर एवरी सैनिटरी, तो फिर बाहर हाथ आके हाथ धोने वाला ये होना चाहिए। ये बातें सारी ये जो कमेंट उसके बारे में कहती है, लेट्रिन्स एंड यूनिवर्स टू बी प्रोवाइडेड इन एनी फैक्ट्री और इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं उस हिसाब से वॉशरूम्स प्रोवाइड होने चाहिए। लाइटिंग्स हो गई थी, ओवर क्राउडिंग लाइटिंग भी हो गया, ड्रिंकिंग वाटर भी हो गया, ड्रिंक्स भी हो गई। फिर स्पिटोन्स में जहाँ बंदा थूक थूक सकता है, क्योंकि हमारे लोग पान भी खाते हैं, सुपारी भी खाते हैं, तो और क्योंकि जाहिर सी बात है इतने लंबे आवर्स की होती है, लोग थक जाते हैं, तो जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो स्मोकिंग भी करते हैं। फिर आप पता है कि वो पान भी खा रहे होते हैं ताकि वो खुद थोड़ा एक्टिव रहे, तो वो जगह जगह थूके ना, थूकने से फिर वो जो है वो गंदगी फैलती है, तो उनके लिए प्रॉपर थूकने की जगह होनी चाहिए, उसको स्पिटोन्स कहते हैं।
Every factory that shall be provided at convenient places a sufficient number of spitons which shall be maintained in a clean and hygienic condition. उनको भी साफ किया जाए. Provisional government may make rules prescribing the type and number of spitons to be provided and the location in any factory and such further matters as may be deemed necessary related to their maintenance is a clean and hygienic condition. कि उनको कहाँ लगाना चाहिए वो साफ होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए. No person shall spit within the premises of a factory except in the spitons provided. तो फैक्ट्री के अंदर आपको थूकने की जगह इजाजत नहीं है. हाँ, अगर वो स्पिटन से वहां पे बाकी वहां जगह जगह थूकने. आप अभी सिविल हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल चले जाए पूरी दीवारें लाल हुई हैं. ठीक है. अब क्या करे बंदा, किसी को कितना रोके. A notice of containing this provision and the penalty for its violation shall be permitted displayed at suitable places in the premises. ये पता होना चाहिए कि अगर आप सही जगह नहीं थूकोगे तो आपके साथ ये पेनल्टी हो सकती है. ये उनको नोटिस करना. Whosoever spits in contravention of subsection shall be punishable with a fine not exempting 2 rupees. 2 rupees. तो अगर कोई थूकता है तो उसको 2 रुपए का जुर्माना करे, ऐसा मतलब तब की बात हो रही है. अब तो जाहिर सी बात है कि जी पुराना लॉ है तो इसलिए 2 रुपए मांग रहे थे. अब तो लॉ चेंज हो गया. नेक्स्ट क्या कहता है. प्रिकॉशंस अगेंस्ट कंटेजियस और इन्फेक्शियस डिजीज. अगर कोई ऐसा वर्कर आपने रखा है जिसको कोई बीमारी है तो फिर आपने ख्याल रखना पड़ता है कि ऐसे को पहले तो नौकरी ना दे. अगर नौकरी दे रहे तो किसी और जगह पे रखे ताकि दूसरा बीमार ना हो. जैसे टीबी है वो लग जाती है, हेपेटाइटिस है वो लग जाता है, कैंसर नहीं लगता किसी को. ठीक है. एड्स है वो लग सकता है. तो इन बारे में उन लोगों के बारे में आपने क्या कहना है. ईच वर्कर इन अ फैक्ट्री शाल बी प्रोवाइडेड विद अ हाइजीन कार्ड in during the month of January and July every year. Entries shall be recorded after examination by appointed factory doctor to the fact that the worker is not suffering from any contagious or infectious diseases. तो उसको कोई हर अपने साल में 2 दफा जनवरी और जुलाई में टेस्ट करना है तो उनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो अगले बंदे को लग सकती है.